بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کہانیاں۔ ہر آنے والی نیو ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کو آن کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹڈ نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ شکریہ۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ آج کی کہانی انتہائی دلچسپ، خوفناک اور سنسنی خیز موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ بدرو پارٹ 14۔ وہ پراسرار شخص بائیں جانب ایک تنگ سی راہداری کے سرے پر پہنچا۔ اس نے دیوار سے چپک کر آڑ سے بائیں جانب ایک اور تنگ سی راہداری میں جھانکا تو اچانک اس نے ایک دوسرے کمرے سے دو افراد کو نکلتے دیکھا۔ پہلے والا شخص انہیں دیکھ کر رک گیا تھا، پھر ان دونوں افراد میں سے ایک نے ذرا تلخ سرگوشی میں پہلے والے شخص سے کہا، عبدل، تم نے ہمارا کام خراب کر ڈالا۔ ناصر ٹھٹکا۔ وہ عورت کی آواز تھی، لیکن یہ سرائے کی مالکہ کلاوتی نہ تھی۔ گویا عبدل ہی تھا جو دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ناصر نے دل میں سوچا، مگر کیوں؟ اس نے الجھ کر خود سے سوال کیا۔ پھر اسے عبدل کی آواز سنائی دی۔ وہ خاصے درست لہجے میں اس جوان عورت سے بولا، روپا، میں تم لوگوں کو یہ نہیں کرنے دوں گا۔ روپا کے ہمراہ کھڑے شخص نے بھی دانت پیس کر غصیلے لہجے میں عبدل سے کہا، تم ہمارے نوکر ہو اور نوکروں کی طرح رہو، سمجھے؟ تم نے ان دونوں کو ضرور پہلے سے محتاط کر دیا ہوگا، اس لیے وہ اندر سے کنڈی لگا کر سو گئے ہیں۔ حالانکہ ہم نے تمہیں سختی سے تاکید کی تھی کہ انہیں اوپر والے کمرے میں لے جانا جہاں کے دروازے پر سرے سے کنڈی موجود ہی نہیں ہے۔ ناصر اب اس آواز کو پہچان گیا تھا۔ یہ روپا کا شوہر تھا، جس کا نام ابھی ناصر کو معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ ادھر عبدل نے جواباً اسے مخاطب کر کے کہا، شیکھر صاحب، میں تم لوگوں کا ملازم ضرور ہوں، لیکن میں تمہیں ان کی جانوں سے کھیلنے نہیں دوں گا، سمجھے تم؟ ناصر عبدل کی بات سن کر دھک سے رہ گیا۔ عبدل اس کا خیرخواہ نکلا تھا، لیکن ناصر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر ان لوگوں کو ان سے دشمنی کیا تھی۔ اچانک ناصر نے دیکھا کہ عبدل کے عقب سے ایک اور انسانی ہیولہ نمودار ہوا۔ پھر جب تک ناصر کچھ سمجھنے کی کوشش کرتا، اس موٹے تازے انسانی ہیولے نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی جانے کس شے سے عبدل کی پشت پر وار کیا کہ عبدل کے حلق سے گھٹی گھٹی چیخ خارج ہوئی۔ ادھر روپا کے شوہر شیکھر نے جلدی سے آگے بڑھ کر عبدل کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ناصر سرتاپا لرز گیا۔ اب وہ اس موٹے تازے انسانی ہیولے کو پہچان گیا تھا۔ یہ کلاوتی تھی، اس کے ہاتھ میں خون آلود چھرا تھا۔ اس نے مزید 2-3 وار عبدل کی پشت پر کیے اور اسے ڈھیر کر دیا۔ پھر کلاوتی نے ہانپتی ہوئی آواز میں شیکھر سے کہا، اس کی لاش سرائے کے پچھواڑے پرانے کنویں میں پھینک دو اور جلدی لوٹ آؤ، ان دونوں کا بھی یہی حشر کرنا ہوگا۔ اس کی بات پر شیکھر عبدل کی لاش کو دونوں ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا ایک طرف لے گیا۔ یہ لرزہ خیز منظر دیکھ کر ناصر کا رواں رواں کانپنے لگا۔ اسے اب اپنی اور ساجد کی جانیں خطرے میں محسوس ہونے لگی۔ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر واپس پلٹا اور تیز تیز مگر محتاط روی سے چلتا ہوا اپنے کمرے میں پہنچا۔ پھر ساجد کو جھنجھوڑ کر جگانے لگا، ساجد، ساجد اٹھو۔ ساجد فوراً ہڑبڑا کر اٹھ کے کہا، کیا ہوا؟ خیریت تو ہے ناصر بھائی؟ ناصر نے کہا، ہاں۔ دونوں دروازے کی طرف بڑھے اور پھر جیسے ہی ناصر باہر نکلا، اسے اپنے سامنے شیکھر کو ہاتھ میں ایک بڑا سا ڈنڈا تھامے پایا۔ اس نے جیسے ہی وہ ڈنڈا ناصر کے سر پر رسید کرنا چاہا تو ناصر نے اپنے سر کو ڈنڈے کی ضرب سے بچانے کی خاطر جھکائی لی۔ نتیجتاً ڈنڈا اس کے سر پر نہ لگا، البتہ اس کے بائیں کاندھے پر پڑا۔ ناصر کے حلق سے کربناک چیخ بلند ہو گئی۔ ساجد بیچارہ ناصر کی چیخ سن کر پریشان ہو گیا۔ ادھر ناصر نے جلد ہی خود کو سنبھالا۔ اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ خونی لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا ہے۔ اگر وہ ڈر گیا تو یہ لوگ دونوں کو جان سے مار ڈالیں گے۔ چنانچہ ادھر شیکھر نے دوبارہ ڈنڈے سے ناصر پر وار کرنا چاہا تو ناصر نے اپنے مضروب کاندھے کی تکلیف بھلا کر ایک زوردار لات شیکھر کی پیٹھ پر رسید کر دی۔ وہ لڑکھڑا کر دیوار سے جا ٹکرایا۔ ناصر اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس پر جھپٹا اور ایک گھونسا اس کی ناک پر جڑ دیا۔ گھونسے کی ضرب زوردار ثابت ہوئی۔ شیکھر کے حلق سے ایک کریح چیخ خارج ہوئی اور اس کی ناک کا بھانسا ٹوٹ گیا۔ اس کی ناک سے بہنے والا خون اس کے چہرے کو مزید خوفناک بنا رہا تھا۔ اچانک ناصر نے کلاوتی کے ہاتھ میں وہی خون آلود چھرا پکڑے دوڑتے ہوئے اپنی طرف آتے دیکھا۔ ناصر نے زخمی شیکھر سے ڈنڈا چھین لیا تھا جو ناک پر پڑنے والے ایک ضرب سے ڈہ گیا تھا۔ کلاوتی جیسے ان کے قریب آئی، ناصر نے ڈنڈا لہرا کر اس کے چھرے والے ہاتھ پر رسید کر دیا۔ کلاوتی کے حلق سے چیخ خارج ہوئی اور چھرا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ ناصر نے لپک کر چھرا اٹھا لیا اور کلاوتی کو دبوچ کر اس کی موٹی سیاہ گردن پر اس کی دھار رکھتے ہوئے بولا، قاتل عورت، بتا تو ہمیں کیوں ہلاک کرنا چاہتی تھی؟ بول، تو نے بے گناہ عبدل کا خون کیوں کیا، ورنہ تجھے ذبح کر ڈالوں گا، بول۔ کہتے ہوئے ناصر نے اس کی گردن پر چھری کی نوک چبو دی۔ کلاوتی کے سارے کس بل نکل گئے، تاہم وہ لکنت زدہ لہجے میں بولی، میں تو تمہیں لوٹنا چاہتی تھی۔ ناصر سمجھ گیا کہ یہ حرافہ سفید جھوٹ بول رہی ہے، لہٰذا نے اس کا منہ کھلوانے کے لیے دوسرا طریقہ اختیار کیا اور دانت پیس کر بولا،
झूठ मत बोल कुतिया, मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली थी और तुझे मैंने अब्दुल का खून करते हुए अपनी आंखों से देखा। अगर तूने सच सच बता दिया कि तुम लोग हमारी जानों के दुश्मन क्यों थे तो हम खामोशी से निकल जाएंगे, और ना दूसरी सूरत में तुम्हारी गर्दन उधेड़ डालूंगा। नासिर का यह हरबा कामयाब साबित हुआ। कलावती थोड़े तरद्दुद के बाद बताने लगी, हमें जाफर मूस की आत्मा ने बता दिया था कि तुम दोनों ढोकपुरा जाना चाहते हो ताकि चमाई के इस पुराने मंदिर के खुफिया तहखाने में रखे जाफर मूस के बुत को पाश पाश कर सको। इतना बताकर खामोश हो गई। नासिर बुरी तरह ठटका, फिर इसने घुरा कर पूछा, क्या तुम लोग भी जाफर मूस के पुजारियों आगरम के ग्रोह से ताल्लुक़ रखते हो? हाँ, हमारा ताल्लुक़ सांसी कौम से है। हमने हिंदू मज़हब का लिबादा और रखा है और दरपर्दा दूसरे लोगों को भी यही तरगीब देते हैं। इसकी बात सुनकर नासिर को बुरी तरह तैश आ गया। इसका जी चाहा कि इस शैतान के पुजारी को ज़िबा कर दे जो भटके हुए लोगों को अपने ग्रोह में शामिल करने का घिनौना और मकरूह अमल कर रही थी, मगर वो इस गंदे खून से अपने हाथ ख़राब नहीं करना चाहता था। इसका हल इसने यही पहले से ही सोच लिया था। इसे कुछ सोचता पाकर कलावती एक बार नासिर को गोया धमकी देते हुए बोली, तुम दोनों के लिए यही बेहतर होगा कि यहाँ से चुपचाप लौट जाओ और चमाई के मंदिर जाने का ख्याल तर्क कर दो, क्योंकि तुम दोनों सांसियों और आगरम कौम का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि मुकद्दस जाफर मूस की आत्मा हमें तुम लोगों के अज़ान की पल पल की खबर देती रहती है। सांसी और आगरम खबरदार हो चुके हैं और तुम्हारे खून के प्यासे हो रहे हैं। तुम दोनों को ढोकपुरा पहुँचते ही जान से मार दिया जाएगा। नासिर को इसकी धमकी पर गुस्सा तो बहुत आया, ताहम इसने चालाकी से काम लेकर कहा, अगर ये बात है तो हमें वाकई अपनी जानों की परवाह करना चाहिए। वैसे सांसियों और आगरम की तादाद कितनी है? कलावती गरूर में आकर बताने लगी, यूँ तो अब हमारी कौम तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और आगरम के नाम से एक छोटा ग्रोह तक ही महदूद हो गई है। गिनती के चंद लोग हैं, मगर जितने भी हैं वो सब काले इल्म के माहिर हैं। तुम भी तो आगरम हो, क्या तुम भी काला इल्म जानती हो? किसी ख्याल के तहत नासिर ने पूछा। वो बोली, सिर्फ आगरम ही जादू टोना जानते हैं, जबकि हम सांसी कौम से ताल्लुक़ रखते हैं। नासिर को शहीद नेक शाह की बात याद आ गई कि आगरम का ग्रोह जाफर मूस के मरने के बाद वजूद में आया था, जिसके ज़िम्मे जाफर मूस की बदरूह को एक ख़ास अमल के तहत इसके मुजस्मे के अंदर हलूल करना था। ये जाफर मूस के चीले भी थे। ये मालूमात हासिल करने के बाद नासिर ने कलावती और बेहोश शेखर को एक कमरे में ले जाकर चारपाई की पायनी वाली रस्सी से दोनों के हाथ बांधकर इन्हें बंद करके बाहर से कुंडी चढ़ा दी। फिर शेखर की बीवी रूपा को तलाश करके इसे दूसरे कमरे में इसी तरह डालकर बंद कर दिया और दोनों इस मनहूस सराय से बाहर आ गए। सुबह काजिब की रोशनी चारों तरफ फैलने लगी थी। नासिर और साजिद गांव के सरपंच से मिले और इसे सिर्फ अब्दुल के कत्ल की हद तक एक मुसाफिर की हैसियत से सारी रोयदाद बता दी। साथ ही सराय के पिछवाड़े इस पुराने कुएं की भी निशानदेही कर दी, जिसके अंदर बेगुनाह अब्दुल को कत्ल करके इसकी लाश फेंक दी गई थी। गांव का सरपंच भला मानस था। इसने इसी वक्त अपने आदमियों के जरिए कार्रवाई की और साथ ही मुतल्लिका थाने के इंचार्ज को भी इत्तला दे दी। कलावती, शेखर और रूपा की गिरफ्तारी की तसल्ली के बाद साजिद और नासिर ढोकपुरा जाने वाली लारी में सवार हो गए। ढोकपुरा लारी से पहर के करीब पहुंच गई थी। लारी से उतरने के बाद साजिद ने नासिर से सरगोशी में कहा, नासिर भाई, हमें अब यहाँ मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जाफर मूस के चीलों आग्रहों को हमारे अज़ाइम के बारे में इल्म हो चुका है। तुम फिक्र न करो साजिद, अल्लाह ने हमें अपनी मंजिल के करीब पहुँचा दिया है। वो आगे भी ज़रूर हमारी मदद करेगा। नासिर ने अज़राए तशफ़ी कहा। नासिर भाई, ढोकपुरा कितना बड़ा गांव है? चंद सानी के बाद साजिद ने इसके हाथ थाम कर पूछा। नासिर जवाबन मुस्कुरा कर बोला, अरे भाई, ये तो छोटी सी बस्ती है। ऐसा लगता है लारी ने हमें आबादी से दूर उतारा। आओ चलते हैं। वो आगे बढ़ा। साजिद ने पूछा, हमें चमाई के मंदिर के बारे में कौन बताएगा? नासिर ने चलते चलते कहा, किसी से पूछ कर देख लेते हैं, कोई ना कोई तो बता ही देगा। दोनों चलते रहे। सामने कुछ घरों का सिलसिला नजर आया। वो इस सिमत तक तेज तेज कदमों से बढ़ने लगे। दोपहर के बाद शाम का अंधेरा फैलने लगा था और वो दोनों अंधेरा फैलने से पहले पहले आबादी तक पहुंच जाना चाहते थे। आबादी तक पहुंचते पहुंचते इन्हें शाम ने आ लिया। एक मकामी शख्स को रोककर नासिर ने इसे चमाई के मंदिर के बारे में पूछा तो वो नफ़ी में सर हिलाकर अजीब से मेरे लहजे में बोला, हमने तो कभी इस नाम का मंदिर नहीं सुना। यहाँ तो दो एक मंदिर हैं तो सही, वो रहे सामने, मगर इनका नाम चमाई नहीं है। नासिर और साजिद दोनों तेज तेज कदमों से मज़कूरा मंदिरों की तक पहुँचे, लेकिन वहाँ इन्हें कोई गैर मामूली बात महसूस न हुई। घेरवे रंग की धोती और बनियान पहने एक पुजारी ने इनसे पूछा, कौन हो तुम लोग? क्या यहाँ रात बसर करना चाहते हो? हमें चमाई के मंदिर की तलाश है, हम वहाँ जाना चाहते हैं। नासिर ने इससे कहा, चमाई का मंदिर? पुजारी उलझते हुए अंदाज में बड़बड़ाए, फिर जैसे इसे याद आ गया और बोला, कहीं तुम इस मंदिर की बात तो नहीं कर रहे जो अब बिल्कुल वीरान और खंडर में तब्दील हो चुका है? हाँ महाराज, हम इसी मंदिर की बात कर रहे हैं, नासिर ने उम्मीद भरे लहजे में कहा।
वो पुजारी बगौर दोनों के चेहरों का जायज़ा लेता हुआ बोला, आखिर तुम लोगों को इतने सदियों पुराने मंदिर में क्या लेना है? अगर तुम ये समझते हो कि वहाँ सोना दफन है तो इसी वक्त लौट जाओ, वहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा सिवाय कुत्ते, बिल्लियों और चमगादड़ों के। महाराज, आपको गलतफहमी हुई है। हम दरअसल पुराने मंदिर की तारीख लिखना चाहते हैं। हम एक अखबार से ताल्लुक़ रखते हैं। नासिर ने बात बनाते हुए कहा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप हमें इस मंदिर का रास्ता बता दें। तुम्हारा नाम क्या है और ये तुम्हारा साथी हंदा है क्या? पुजारी ने साजिद को देखकर पूछा। नासिर को इससे अब बेजारी होने लगी थी। इसने कहा, हाँ, ये बेचारा देख से नहीं सकता, एक हादसे में इसकी आंखें ज़ाया हो गई हैं। तुमने अपने नाम नहीं बताया। इसने अब इसकी बात दोनों को तशकीक भरी नज़रों से घूर कर अपना सवाल दोहराया तो नासिर ने दरोगोई से काम लेते हुए अपने और साजिद के गलत नाम बता दिया। वो बोला, मेरा नाम अर्जुन है और मेरे दोस्त विक्रम है। पुजारी ने एक लंबा हंकारा भरा और फिर हाथ के इशारे से एक जानिब देखते हुए बताने लगा, वो सामने चाय के खेत देख रहे हो, इनके दरमियान में एक बल खाता कच्चा रास्ता जा रहा है, इस पर चलते जाओ, ये रास्ता इसी मंदिर पर ख़त्म होता है। पुजारी इतना बताकर मंदिर की सीढ़ियों से वापस लौट गया। वो दोनों मंदिर के बाहर खड़े हो गए। इन्हें इतना तो मालूम था कि चिमाई का मंदिर ढोकपुरा की आबादी से चंद मील दूर एक वीरान जंगल में था, वरना वो इस मंदिर को देखकर धोखा खा सकते थे। बहरतौर वो पुजारी के बताए हुए रास्ते पर चल पड़े। फैसला कुन घड़ी आन पहुंची थी। इनका अब किसी वक्त भी आगरम ग्रोह से टकराव होने वाला था। इस बात का इन दोनों को भी एहसास था, मगर नेक मकसद और सच्चे जज्बे की लगन इन्हें कुशां आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। नवाज नामी सिपाही की हलाकत ने पूरे मोहल्ले में सनसनी फैला दी थी। इसके दूसरे साथी सिपाही कादिर बख्श को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसने चीख कर अपनी सफाई में ये कहना चाहा था कि इसकी नवाज से कोई दुश्मनी ना थी, बल्कि इसने सर कटे पर गोली चलाई थी। मगर लोग यही समझ रहे थे कि कादिर बख्श ने इन पुरस्कार हालात से फ़ायदा उठाकर नवाज के साथ अपनी पुरानी दुश्मनी निकाली थी। इसे गिरफ्तार करने के बाद तफ्तीश शुरू कर दी गई। अलबत्ता नवाज के कत्ल के सिलसिले में मोहल्ले वाले सिपाही कादिर बख्श की इस राय से मुत्तफिक थे कि वो झूठ नहीं बोल रहा था, लिहाजा नवाज के कत्ल का इल्ज़ाम भी मोहल्ले वालों ने मुश्तरका तौर पर अंधेरी कोठी के बासियों के सर थोप दिया था। अंधेरी कोठी पर पुलिस का पहरा जू का तू था। मोहल्ले के चंद लोगों ने इन पुलिस वालों के कान भी भरने की कोशिश की कि वो अपनी जानें खतरे में ना डालें और यहाँ से चले जाएं। अगरचे कुछ सिपाही इस लज्जाखेज़ वाक़े के बाद अंदर से खौफज़दा भी हो चुके थे, मगर वो अपने अफसर के हुक्म की अदुली नहीं कर सकते थे। इधर जीनत और शगुफ्ता भी एक सिपाही की हलाकत पर रंजीदा थी, मगर वो क्या कर सकती थी। जानती वो भी थी कि ये सारा किया धरा इसी बदरू का था, जिसकी बेखुनी के लिए साजिद और नासिर भीरा नामी गांव गए हुए थे, जिन्हें गए काफ़ी रोज़ बीत चुके थे और इनकी अब तक वापसी के आसार तक नज़र नहीं आ रहे थे। ना इनकी कोई खैरियत मालूम होती थी कि खुदा न खास्ता वो ज़िंदा भी थे या मर चुके थे। शगुफ्ता ने तो अपने भाई साजिद और शोहर नासिर की इस तवील जुदाई में रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। जीनत इसे तसल्लियाँ देने के सिवा और कर भी क्या सकती थी। वक्त गुजरता गया। इधर शफ़क़त को भी अब अपने भांजे की फ़िक्र लाहक होने लगी। इसे बार बार यही ख्याल परेशान किए दे रहा था कि पता नहीं वो ज़िंदा भी है या नहीं। फिर इसे शगुफ्ता के नाबीना भाई साजिद का भी ख्याल आया कि वो भी तो इसी दिन से गायब है। आखिर ये दोनों अचानक कहाँ गायब हो गए थे, इनका कुछ पता न था। बिला आखिर एक दिन वो अपनी बहू से नासिर के बारे में पूछने की खातिर अंधेरी कोठी जा पहुंचा, मगर वहाँ मौजूद पुलिस ने इसे रोक दिया। शगुफ्ता मेरी बहू है, मैं इससे मिलना चाहता हूँ। उसने पुलिस वाले से कहा, ठीक है, हम पहले अंदर शगुफ्ता बीबी से पूछ लेते हैं कि वो तुमसे मिलना चाहती है या नहीं। एक पुलिस वाले ने संजीदा लहजे में कहा और फिर एक सिपाही को अंदर शगुफ्ता से इजाज़त लेने के लिए भेज दिया। शगुफ्ता ने मिलने की इजाज़त दे दी तो शफ़क़त को इसके पास पहुंचा दिया गया। शफ़क़त ने इस बार जोश और गैस की खींचली उतारकर नहायत मुल्तजाना लहजे में शगुफ्ता से कहा, शगुफ्ता बेटी, आखिर तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो कि नासिर यूँ अचानक कहाँ गायब हो गया है? वो मेरे बेटों की तरह है, तुम्हें अल्लाह का वास्ता इसके बारे में बता दो। एक वही तो मेरे बुढ़ापे का सहारा है। शगुफ्ता को अपने ससुर की आउजारी पर तरस आ गया और फिर इसने इसे सब कुछ सच सच बताने का फैसला कर लिया कि शायद सारी हकीकत जानने के बाद इसे यकीन हो जाए कि असल बात क्या थी। इस तरह इनकी परेशानी भी ज़रा कम हो जाए। अंधेरी कोठी को तबाह या नजर आतिश करने के सिलसिले में शफ़क़त मोहल्ले वालों में सबसे आगे था, बल्कि असल मुहर्रिक ही वही था। लेकिन अब अपने बांजे नासिर की पुरस्कार गुमशुदगी ने इसे एक नई परेशानी में मुब्तला कर दिया था, क्योंकि इसका दुनिया में नासिर के सिवा और कोई ना था। यही सबब था कि वो अब अपनी बहू शगुफ्ता से इस सिलसिले में मिलने पर मजबूर हुआ था। वो बहुत दुखी था। इधर शगुफ्ता ने भी अपने ससुर को मलूल होता देखकर बिला आखिर से सारी हकीकत से आगाह करने का फ़ैसला कर लिया था,
تاہم اس طرح کہ اس کی بھی حمایت انہیں حاصل ہو جائے اور وہ محلے کے دیگر لوگوں کے ساتھ اس کوٹی کو نظر آتش کرنے کا فیصلہ بدل دے۔ چنانچہ شگفتہ نے اسے ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ ناصر اس کا بھائی ساجد ٹاہلی والے بابا کے کہنے کے مطابق اس بدرو کا ہمیشہ کے لیے قصہ نمٹانے کے لیے ایک طویل اور پرخطر مہم پر روانہ ہو چکے ہیں۔ اپنی بہو شگفتہ کی ساری کتھا سننے کے بعد شفقت چند ثانیے کی گہری اور پرسوچ خاموشی کے مستغرق ہو گیا تھا۔ پلیز ہم پہلے ہی بہت پریشان ہیں، ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، خدا کے لیے آپ اس کوٹھی کو تباہ کرنے کا خیال اپنے دل سے نکال دیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو نہ صرف ہماری ساری محنت اکارت جائے گی بلکہ وہ بدرو بھی ہمارے بعد دوسرے بے گناہ لوگوں کی زندگی اجیرن کر دے گی، پھر نہ ہم اس کے شر سے بچ پائیں گے اور نہ آپ سب لوگ۔ شگفتہ نے اسے آنے والے خطرے سے آگاہ کر دیا۔ شفقت اب پہلی بار اپنے مزاج سے ہٹ کر کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ جو بپتا شگفتہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اسے سنائی تھی، پہلے پہل تو اسے ان باتوں پر یقین ہی نہ آیا تھا، لیکن گزشتہ حالات کے تناظر میں باریک بینی سے جائزہ لینے کے بعد شفقت کو یقین ہونے لگا تھا کہ اس کی بہو شگفتہ ہرگز جھوٹ نہیں بول رہی، کیونکہ ناصر کے ساتھ اس کے اپنے نابینا بھائی ساجد کی زندگی بھی داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ چنانچہ شفقت نے پہلی بار اپنا دست شفقت شگفتہ کے سر پر رکھتے ہوئے اس سے کہا، بیٹی مجھے واقعی کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی، مگر تم پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم سب مل کر اللہ سے دعا کریں گے کہ وہ ہمیں اس نیک مقصد میں کامیاب و کامران کر دے۔ آمین۔ شگفتہ نے بے اختیار دعائے کلمہ ادا کیا۔ وہ بہت خوش تھی۔ میں محلے والوں کو اس سلسلے میں اعتماد میں لینے کی کوشش کروں گا، خدا کرے ناصر اور ساجد بہت جلد خیریت اور کامیابی سے لوٹ آئیں۔ اس نے شگفتہ کو تسلی دی تو بے اختیار شگفتہ نے اپنا سر ان کے شانے سے لگا دیا اور شفقت ملائمت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ ہر سو تاریک سناٹے اترنے لگا تھا۔ ساجد تو دیکھنے سے قاصر تھا، مگر ناصر اپنے اطراف پھیلی ہوئی تاریکی میں محتاط نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ پجاری نے اسے سانسی قبیلے کے بارے میں بتایا تھا کہ انہوں نے گاؤں ڈھوک پورا سے کافی دور ایک تاریک گھنے جنگل میں رہائش اختیار کر رکھی ہے۔ یوں تو وہ لوگ گاؤں میں ہی سب کے ساتھ مل کر رہتے تھے، لیکن اپنے خاص مذہبی دنوں اور تہواروں میں وہ لوگ آبادی سے میلوں دور گھنے جنگلوں میں سرکنڈوں کی جھوپڑیاں بنا کر رہتے تھے۔ انہوں نے اپنی عبادت گاہ بھی بنا رکھی تھی۔ ناصر کو سب سے زیادہ اس بات کی تشویش تھی کہ ڈھوک پورا کی سرائے کی مالک کلاوتی نے یہ سنسنی خیز انکشاف کیا تھا کہ سانسیوں کو حقیقت کا علم ہو چکا ہے کہ دو اجنبی ان کی مقدس جعفرموش کے بت کو پاش کرنے کی نیت سے چمائی کے مندر میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں، چنانچہ وہ لوگ انہیں دیکھتے ہی موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ یہی سبب تھا کہ ناصر کچھ زیادہ ہی محتاط تھا۔ اگر ساجد کی ضرورت نہ ہوتی تو ناصر سے پہلی فرصت میں لے کر واپس شہر کا رخ کرتا اور پھر خود اکیلا آ کر یہ کام سر انجام دیتا، لیکن اس مہم میں ساجد کی موجودگی لازمی قرار دی گئی تھی، کیونکہ بقول شہید نیک شاہ کی روح اس شیطان جعفرموس کا خاتمہ اس کے خاندان کا کوئی شخص ہی کر سکتا تھا، اور سر دست اس خاندان کے صرف یہ دو بہن بھائی یعنی شگفتہ اور ساجد ہی زندہ بچے تھے۔ تاہم ناصر اس کی رہنمائی میں آخر تک اس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ وہ دونوں لگ بھگ کوئی 1.5-2 کلومیٹر پیدل چلتے رہے تھے۔ جنگل کا سلسلہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا، وہ ابھی چھدری جاڑیوں والے ناہموار میدان سے گزر رہے تھے۔ البتہ کہیں ٹنڈ منڈ درخت پراسرار ہیولوں کی طرح استادہ نظر آ رہے تھے۔ ان درختوں کی شاخیں سوکھی ہوئی تھی، تاروں بر آسمان صاف اور روشن تھا، جس سے آس پاس کا علاقہ کافی روشن تھا۔ اچانک ناصر چلتے چلتے ٹھٹک کر رکا۔ اسے یوں لگا تھا جیسے کوئی ان کے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ ناصر کو حکم میں دھڑکتی ہوئی تاریکی کے سوا کچھ دکھائی نہ دیا۔ ناصر اسے اپنا وہم سمجھ کر پھر چل پڑا۔ ناصر بھائی، میں تو بہت تھک گیا ہوں، کوئی ایسی جگہ تمہیں نظر نہیں آئی جہاں ذرا دیر سستا لیا جائے؟ ساجد نے چلتے چلتے قدرے ہانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ ناصر نے رک کر دائیں بائیں دیکھا۔ قریب ہی ایک موٹے سے تنے والا درخت نظر آیا۔ وہ ساجد کو لے کر وہاں جا پہنچا۔ قدرتی طور پر 2-3 موٹے تنے جڑ کر ایک وسیع پھیلاؤ رکھنے والے درخت کی شکل اختیار کر گئے تھے، مگر اس کی بھی ساری شاخیں سوکھی ہوئی تھی، ایک پتا تک نہیں تھا، بالکل ٹنڈ منڈ درخت تھا۔ چاند کی طلسماتی ٹھنڈی روشنی میں خزاں رسیدہ درخت بڑا پراسرار منظر پیش کر رہا تھا، جیسے کوئی بھاری بھرکم عفریت اپنے کئی ہاتھوں اور بازوؤں کو پھیلائے کھڑا ہو۔ وہ دونوں اس درخت کے موٹے اور کشادہ تنے سے پشت ٹکائے بیٹھ گئے۔ ناصر بھائی، ہم نے رات میں نکل کر غلطی تو نہیں کی؟ چند ثانیوں کی دھڑکتی ہوئی خاموشی کے بعد ساجد نے ناصر کو مخاطب کیا۔ نہیں، اس سانسیوں کی بستی میں داخل ہونے کا یہی وقت زیادہ مناسب رہے گا، ناصر نے جواب دیا۔ لیکن ناصر بھائی، ہمیں ان کی آبادی میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں تو صرف چمائی کے مندر تک ہی پہنچنا ہے، ساجد نے قدرے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم نے شاید اس پجاری کی بات پر دھیان نہیں دیا، ناصر بولا۔ چمائی کا مندر جس گھنے اور تاریک جنگل میں ہے، سانسیوں کی جھوپڑیاں بھی وہی ہیں، قریب میں واقع ہے۔
तो गोया इसका मतलब है कि हमें इनकी आबादी के बीच से गुजरना होगा। साजिद के लहजे में तशवीश थी। यकीनन, नासिर ने हौले से कहा। अचानक इसे सामने वाले एक निस्बतन छोटे और कम शाखों वाले टुनमुन दरख्त के ऊपर में एक साया हरकत करता दिखाई दिया। नासिर बुरी तरह ठटका। ये कौन है? वो बेख्तियार बुड़बुड़ाया। इसकी धड़कती नजरें हनूज इस दरख्त पर मरकूज थी। कौन है नासिर भाई? साजिद ने जल्दी से पूछा। तुम यही ठहरो, मैं देखता हूँ। मुझे सामने वाले दरख्त के ऊपर में कोई छुपा महसूस हो रहा है, नासिर ने सरसराती सरगोशी में कहा और फिर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। इसके बाद वो साजिद को वहीं छोड़कर धीरे धीरे सामने वाले दरख्त की जानिब बढ़ने लगा। इसका दिल सीने में तेजी से धड़क रहा था। अभी वो दरख्त करीब पहुंचा ही था कि अचानक हल्की सी गुर्राहट सुनाई दी। वो ठटक कर वहीं रुक गया। इस दरख्त के मोटे तने के ऊपर में चांद की मध्यम रोशनी में कोई छुपा हुआ दिखाई दिया। वो किसी जानवर का साया था जिसकी पिछली दोनों टांगें मादूम साफ नजर आ रही थी। नासिर किसी खूंखार दरिंदे के तस्वुर से अब उल्टे पैरों पीछे हटने लगा। तब अचानक ही वो दरिंदा दरख्त के आड़ से बाहर बरामद हुआ, जिसे देखकर नासिर के पूरे वजूद में कपकपी थारी हो गई। वो एक काले रंग का शेर था। इसकी आंखें बहुत छोटी और चंदू चंदू थी, मगर इनमें बला की सुर्खी और वहशत मुतरशा थी। नासिर इस स्याह और खूंखार दरिंदे से इस कदर खौफजदा हो गया कि इसकी टांगें लरजने लगी। नतीजतन उसके पीछे हटते हुए कदम लड़खड़ाए और वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका और जैसे ही भुरभुरी मिट्टी वाली ज़मीन पर गिरा, ठीक इसी वक्त वो स्याह रंग का दरिंदा अपनी चुंदी चुंदी सुर्ख आंखों से इसे घुरता हुआ तेजी से इसकी जानिब लपका। इसकी हलक से गुर्राहट उबल रही थी। नासिर का खून खुश्क हो गया। इसे अपनी मौत साफ नजर आने लगी थी। मौत को सामने पाकर इसके असाब यकदम ही जवाब दे गए थे। इधर साजिद ने भी इस स्याह दरिंदे की गुर्राहटें सुन ली थी। वो मुतहविश सा होकर उठ खड़ा हुआ और नासिर को पुकारने लगा। इधर इस स्याह दरिंदे ने भी नासिर के अलावा सामने एक और शख्स को देखा तो वो नासिर के बिल्कुल करीब पहुंचकर रुक गया। इसका और नासिर के दरमियानी फासला सिर्फ चंद फीट का रह गया था। नासिर का लहू मुंजमद हो चुका था। एक खूंखार और खौफनाक दरिंदे को अपने सर पर बिल्कुल नज़दीक पाकर इसके हवास जवाब दे गए थे। इसके वजूद की जैसे सारी कुव्वत सल्ब हो चुकी थी। इसमें इतनी हिम्मत भी नहीं हो पा रही थी कि वो उठकर भागने की कोशिशें करता। दूसरी तरफ साजिद हैरान परेशान खड़ा था। इसे दरिंदे की खतरनाकी का अंदाज़ा नहीं था, ना ही नासिर इसे कोई जवाब दे रहा था। नासिर को यह देखकर ज़रा हिम्मत हुई कि काला शेर करीब पहुंचने के बाद रुक गया था। नेज़ वो अब इसकी तरफ घूरने के बजाय टिकटिकी बांधे साजिद की तरफ देख रहा था। नासिर यही समझा कि शायद ये काला शेर अब साजिद पर झपटेगा, मगर वो खुद हैरान था कि काला शेर अपनी जगह से ज़रा से टस से मस नहीं हो रहा था। यूँ नासिर ने ज़रा हौसला पकड़ा और लेटे लेटे पीछे की तरफ सिरकना शुरू कर दिया और जैसे ही वो साजिद के करीब पहुंचा, इधर काले शेर ने भी धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। नासिर की मारे दहशत से अभी तक घिघी बंदी हुई थी और वो फटी हुई आंखों से अपनी तरफ बढ़ते हुए काले शेर को तके जा रहा था। इस शेर की आंखों में जाने कैसे तलसमी कशिश थी कि नासिर गुमसुम सा होकर रह गया। साजिद ने नासिर की मौजूदगी को महसूस करके इससे दोबारा कुछ पूछने की कोशिश की। वह मुश्किल नासिर के मुंह से बेरब्त निकला, शेर क्या? साजिद ज़ोर से चीखा। इसी असना में वो काला शेर साजिद को घूरता हुआ करीब आ गया। तब एक हैरत अंगेज़ वाक़या रूनुमा हुआ। वो काला शेर अपने दुम हिलाने लगा और इसके साथ ही वो साजिद के बिल्कुल करीब आकर इसकी टांगों से अपने वजूद को मस करने लगा। फिर इसके कदमों में बैठकर इसने अपना सर ज़मीन में रख दिया। साजिद अपनी जगह से बिल्कुल मत हिलना, नासिर ने हल्की सरगोशी में इससे कहा। साजिद ने भी अपनी टांगों के साथ किसी जानवर के वजूद का लम्स महसूस कर लिया था। नासिर भाई कुछ तो बताओ, ये क्या मामला है? नासिर खुद हैरान था। इसका डर और खौफ से अब शदीद हैरत में बदल गया था। तब नासिर ने साजिद को बताया, साजिद एक काला शेर तुम्हारे कदमों में सर रख के बैठा हुआ है, पता नहीं क्या मामला है, मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा। अभी नासिर ने इतना ही कहा था कि वो शेर अपनी जगह से उठा और चंद कदम आगे बढ़ने के बाद रुक गया। फिर दोबारा इनकी तरफ देखकर अपनी दुम हिलाने लगा। नासिर की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब वो काला शेर दोबारा इनकी तरफ पलटा, होले से घुराया, फिर आगे बढ़ा और रुककर इनकी तरफ देखने लगा। अब वो अपनी दुम को भी ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगा। मेरा ख्याल है ये हमें कहीं ले जाना चाहता है, आओ। नासिर ने जैसे काले शेर का इशारा भांपने की कोशिश करते हुए कहा तो साजिद ने भी होले से इस बात में सर हिला दिया। फिर अब वो दोनों इस काले शेर के हुक्म में चलने लगे। काला शेर इनके आगे आगे चलने लगा। रात गहरी होने लगी थी। आसमान पर टिके तबाग चांद की तलसमाती रोशनी से अतराफ का माहौल खासी हद तक मुनव्वर हो रहा था। वो दोनों काले शेर के पीछे चलते रहे।
और थोड़ी देर बाद नासिर को सामने चांद की रोशनी में एक बोसीदा इमारत का ह्योला नज़र आने लगा। वो शेर इन खंडर नुमा इमारत के अंदर दाखिल हो गया। नासिर एकदम रुक गया। साजिद के कदम भी ज़मीन में गड़ गए। हम कहाँ आ गए नासिर भाई? साजिद ने पूछा। नासिर ने बताया, ये शेर हमें खंडर के करीब ले आया है। पता नहीं ये क्या इसरार है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। साजिद ने कुछ सोचने के बाद पुरख्याल लहजे में कहा, नासिर भाई लगता है शेर हमारी कोई मदद करना चाहता है। वो कहाँ गया? मुझे भी ऐसा ही लगता है। नासिर ने भी जैसे कुछ भांपते हुए कहा, हमें इसके पीछे चलना होगा, आओ। काला शेर इन्हें रुकता देकर अपनी गर्दन मोड़े इनकी तरफ देखने लगा और दोबारा अपनी दुम हिलाने लगा। फिर जब इन दोनों ने इसकी तरफ कदम बढ़ाए तो इसने भी चलना शुरू कर दिया। वो दोनों अब काले शेर के पीछे पीछे चलते हुए खंडर के अंदर दाखिल हो गए। ये एक टूटा फूटा बोसीदा सा वसी हॉल नुमा कमरा था जिसकी छत ज़माने के सर्द गर्म से मुहंदम होकर गिर चुकी थी। इसका मलबा आसपास बिखरा हुआ था। वो काला शेर एक कोने की तरफ बढ़ गया। अचानक एक आहट पर लोग बुरी तरह ठटके। काला शेर भी ठटके हुए अंदाज में रुक गया। नासिर ने उखब में गर्दन मोड़कर देखा तो उसे 4-5 अफराद तेजी से अंदर दाखिल होते हुए दिखाई दिए। इन सबके हाथों में खरोलियां और बर्छियां थी जिनके फल टूटी हुई छत से पड़ती चांदनी में चमक रहे थे। काला शेर इन लोगों की मौजूदगी महसूस करते हुए एक टूटी हुई दीवार से जस लगाकर बाहर निकल चुका था। वो 5 अफराद हाथों में खरोलियां और बर्छियां तामे अंदर दाखिल हुए थे। इन दोनों को घेरे में ले लिया। नासिर के चेहरे पर तशवीश के आसार उमड़ आए। इसने साजिद के कान में सरगोशी करके इसे खतरे से आगाह कर दिया था। साथ ही नासिर को इस बात पर हैरत भी थी कि आखिर वो पुरस्कार काला शेर किधर गायब हो गया। ताहम इसने अपने हवास बहाल रखे। वो पांचों अफराद तनमंद और स्याह रंगत के थे। इनके ऊपरी जिस्म बरहना थे और नीचे धोती टाइप कोई तैबदार कपड़ा लपेट रखा था। इनके सर गंजे थे और कानों में पीतल के बाले झूल रहे थे। इनकी आंखों में वहशतें हलकोरे ले रही थी। अलबत्ता इनके कदोकामत दबते हुए थे। कौन हो तुम लोग? इनमें से एक ने दुरुस्त लहजे में नासिर को घूरते हुए पूछा। वो निस्बतन ज़्यादा ढील डोल का मालिक था। नासिर को कुछ अंदाज़ा हो गया था कि ये लोग सांसी कबीले के अफराद ही हो सकते हैं। ताहम अपने हवास बहाल रखते हुए बोला, हम शाहपुर से आए, एक अखबार के लिए काम करते हैं। तारीख़ी मकामात की सैर करना और इन बरसों पुराने कंट्राट के बारे में लिखना हमारा पेशा है। नासिर की बात सुनकर एक दूसरा बगौर इन दोनों का जायज़ा लेते हुए मकरू मुस्कुराहट से बोला, तुम्हारी ये चालाकी काम नहीं आ सकती क्योंकि हम तुम्हें अच्छी तरह जान गए कि तुम कौन हो। मुकद्दस जाफर मूस ने हमें सब बता दिया है।